हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीप संगीत माइती। आई वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है मिस्टर आशीष जोशी, जो कि एमएस कर रहे हैं फ्रॉम आईआईटी मद्रास इन मशीन डिज़ाइन। तो आइए चलिए जानते हैं कि वो किस तरीके से आईआईटी मद्रास में पहुँचे, कितना स्कोर था उनका एंड उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया, कैसा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था, किस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी एंड ऑल दो स्टफ्स, सारा चीज़ों का आज वो आंसर करने वाले हैं। सो वेलकम आशीष सर। सो बताइए कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका जर्नी, इस पूरे जर्नी को बताइए हमारे लर्नर्स के साथ, और आपका क्या स्कोर था, सारा चीज़ हम बिल्कुल जानना चाहेंगे। यस, Thank you, sir. So first of all, I thank you for giving me this opportunity and inviting me to this interactive session. So basically जो मेरा जर्नी था आईआईटी मद्रास तक का, वो शुरुआत होती है उसकी गेट एग्ज़ाम से, गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से। सो गेट की जो मैंने प्रिपरेशन थी वो मैंने 4th ईयर फाइनल ईयर पे ही मतलब चालू कर दी थी, जब मैं मेरे मतलब अंडर ग्रेजुएट जब ग्रेजुएशन कर रहा था उसमें। सो फाइनल ईयर में मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी। उसके बाद सेल्फ प्रिपरेशन के उस समय मैंने सिर्फ गेट को क्वालिफाई किया था। आफ्टर क्वालिफाइंग बट माई स्कोर वॉज नॉट दैट गुड इन दैट अटेम्प्ट, माई स्कोर वॉज 395 ओनली। बट आफ्टर दैट मैंने सेकेंड बार कोचिंग की, और जिसके थ्रू मेरा गेट स्कोर जो है उस समय भी मतलब उतना अच्छा नहीं था, डिसेंट गेट स्कोर था। सो माई गेट स्कोर वॉज सेकेंड टाइम व्हेन आई गेव गेट, एट दैट टाइम माई गेट स्कोर वॉज 616। उसके बाद फिर से मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की, बिकॉज उस समय मेरे को लगा कि कुछ गलतियाँ मेरे से हुई गेट प्रिपरेशन के दौरान, और वो गलतियाँ को, और ऑब्वियसली सम लैक ऑफ प्रिपरेशन वाज आल्सो देयर, जिसके कारण मैं मतलब पूरा अच्छे से मतलब अपने आप को टाइम नहीं दे पाया सेल्फ स्टडी को। तो फिर से मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की, और थर्ड टाइम मैंने फिर से जब गेट दिया तो उसमें मेरा जो गेट स्कोर था वो 699 था, और उस समय मेरी जो रैंक थी वो 2530 रैंक मेरे को आई थी। और इसमें इस रैंक से आपको आईआईटी मद्रास मिल गया, ये बहुत बिल्कुल जानना चाहेंगे सारे लोग। बताइए मतलब फिर। फिर व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई हैव secured this rank, all India rank, then I applied in different IITs for different programs like MTech and MS. So I applied in different IITs for MTech program through COPE, and then for also I applied in NITs through CCMT. So apart from it, I also applied for MS programs. So because I knew this program, that about this program, because some of my friends they told me that some IITs have this program, and like IIT Bombay, this program in IIT Bombay is known as a MTech RA, like there, and in IIT Madras I came to know that they offer this program as MS program, MS by research. So I applied it for different IITs for MS program, and I got call from IIT Madras. And also so I have applied not only a specific core specialization, but also I applied different specialization like interdisciplinary specialization in different IITs. Like in IIT Madras I applied for applied mechanics department also, for MS program, and also in IIT Hyderabad I applied for MTech for MS program mechanical, and in IIT Delhi also I applied for energy science and other interdisciplinary program as well, and in IIT Bombay also I applied for different programs of MS which they offer. Yes, and then after doing this was the first stage actually, जिसमें आपको फर्स्ट अप्लाई करना होता है पूरे IITs में, और जब आप एक बार अप्लाई कर देते हो तो you will get a call. So it depends on the particular cutoff particular IIT sets for that particular branch. So I got call from few IITs. So like I got call from IIT Madras Applied Mechanics Department for MS. I got call from IIT Madras Mechanical Engineering Department for MS.
and I got call from IIT Bombay Okay. in one interdisciplinary branch named Sitara. अच्छा. And also I got call from IIT Hyderabad, but I got this call after getting this MS in IIT Madras, so I didn't go for IIT Hyderabad. Also I got call from IIT Bhubaneswar and IIT Gandhinagar अच्छा. for MTech mechanical engineering department. I gave interviews for few IITs only because of some clashing issues. Because some date were clashing for interviews. So I chose IIT Madras over IIT Bhubaneswar. So I went to IIT Madras for applied mechanics call for MS, and that interview was not very good. So I didn't get selected for that. Okay. But after that I gave interview for this IIT Madras for this mechanical engineering department in IIT Madras. So that interview was very good, and I gave almost all answers what faculties asked me. क्या क्या क्वेश्चन थे, थोड़ा आप शेयर करेंगे वहाँ पे? So questions were basically actually I wanted to go for design. So what actually is the thing is कि जब आप अप्लाई करते हैं for MS प्रोग्राम में, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है, ठीक है. तो वहाँ पे आपको पूछेंगे कि कौन सा स्पेशलाइजेशन आप चूज़ करते हो, अच्छा. किस में आपका इंटरेस्ट है. Okay. So on the basis of that only they will ask you the questions. So मैंने जो है वो डिज़ाइन चूज़ किया था. So the faculties from design department he asked me questions for with the respective branch, and the questions were basically from strength of material, theory of machine, and machine design. अच्छा. So and the questions were of basic level. जैसे एक आध कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे तो एक दो क्वेश्चन जस्ट फॉर रेफरेंस, ताकि हमारे लर्नर्स वो यूज़ कर सके, कुछ भी. So वो मेरे को एक्चुअली शाफ्ट डिज़ाइन के लिए बोले थे. शाफ्ट डिज़ाइन के लिए बोले थे. अच्छा. तो उसमें मेरे को याद है कि उन्होंने बोला था कि यू हैव टू डिज़ाइन अ शाफ्ट हैविंग विच इज़ सब्जेक्टेड टू ऑल 3 लोड्स, अच्छा. लाइक बेंडिंग, टॉर्शन एंड शेयर. एंड देन उन्होंने उससे रिलेटेड मतलब पूरा मेरे को डिज़ाइन करवाया था वहाँ पे, डिराइव करवाया था. एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मतलब आ रहे थे डिराइव करने के दौरान, तो उन्होंने वो सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे. अच्छा. एंड उसके बाद फिर जब मैंने उसको डिज़ाइन करके मतलब लास्ट तक चले गए थे, तो उन्होंने फिर मशीन डिज़ाइन का पार्ट भी इसमें ऐड किया था. तो उसमें उन्होंने बोला था कि नाउ आई एम आस्किंग यू अ सेकेंड क्वेश्चन. So that second question will be like if I am providing a notch over the periphery of the shaft, then how you will design for fluctuating load. So that was the question, the second question they asked me. So this was like from machine design part. So I told I gave the answer that we can design this fluctuating load case using endurance strength method, and using SN curve. We can calculate the number of cycles. So for that also he asked me that how you will calculate the correct endurance limit and all. So like for correct endurance limit we need to calculate the Ka, Kb, Kc, Kd, these factors we need to calculate, and then that factors need to be multiplied with SE, that endurance strength. So like that I gave the answers. So they were pretty much satisfied with my answers what I gave, and then they said that yeah, thank you very much. So मतलब यहाँ पे पूरा मशीन डिज़ाइन रिवाइज करा दिया आशीष जोशी सर ने. मतलब या सब पूछे थे मतलब क्वेश्चंस जो थे. अच्छा. तो बेसिक ही क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब Basic questions रहते हैं बहुत, मतलब है ना? एकदम कोई एकदम हाई फाई क्वेश्चंस नहीं रहते हैं. आप जो अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहा है और जो अगर बेसिक उसका अगर स्ट्रॉन्ग है और फॉर्मुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि दे वांट अस टू फॉर्मुलेट द इक्वेशंस देयर. सो मैथमेटिकल फंडा और जो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है
वो स्ट्रॉन्ग अगर हैं तो फिर इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, आराम से क्रैक हो जाते हैं इंटरव्यूज़। तो जैसे अभी आपने आपका जहाँ पे जो भी सिलेक्शन हुआ, तो ये जो फॉर्म्स वगैरह हैं ये कौन से डेट पे कब आ जाता है? मतलब जस्ट गेट एग्ज़ाम होता है उसके बाद फॉर्म्स सारे आना शुरू हो जाते हैं, हमको बस अवेयर रहना पड़ेगा, जी है ना? डेट्स अब आएंगे, हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए कुछ हमको स्पेसिफिक कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहता है क्या, कि लाइक ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है? ऐप जैसे मैंने देखा है, जैसे आप अगर कोई जैसे निटी मुंबई का आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर वो बेस्ड ऑन दैट फॉर्म आपको फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, है ना? तो ऐसा उसमें भी कुछ रहता है क्या, ऐसा समथिंग लाइक दैट? हाँ, मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने याद है मेरे को कि मैं आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म भरा था, तो उसमें उन्होंने एक एसओपी मांगा था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये सिटारा के लिए ना? जी, सितारा जो ब्रांच है उसके लिए। तो उसमें वो एसओपी मतलब आपका एक शॉर्ट फॉर्म में आपकी लाइफ स्टोरी देनी होती है कि आप कैसे मतलब इसमें आपका इंटरेस्ट है रिसर्च एरिया में, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर अप्लाइंग फॉर समथिंग सम प्रोग्राम विच इज़ रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम। MS program is a research oriented program, so they want to know that are you interest, means how you are showing your interest towards that program. So that is why वो लोग जो है SOP मांगते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट SOP जो रहता है वो पढ़ते भी होंगे, क्योंकि मेरे समय में मतलब ऐसा हुआ था कि जो IIT मद्रास में भी मैंने SOP सबमिट किया था, तो वहाँ पे मतलब SOP को कोई मतलब नहीं, मतलब फैकल्टीज़ मतलब मेरे को नहीं लगा कि वो मेरा SOP उनके पास था उस समय, वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। तो उसमें आप SOP में बेसिकली मैंने जो लिखा था वो मतलब शुरुआत से आप कैसे अपने आप को मैथमेटिकल चीज़ों की तरफ इंटरेस्टेड, आप कैसे अपने आप को मानते हो, वो सब आपको बताना होता है, जनरल चीज़ें बतानी होती है जनरल टर्म्स में। बट अदरवाइज़ कुछ बाकी IITs नहीं कुछ मांगते हैं आपको, मतलब बस फॉर्म फिलअप करना होता है, और फॉर्म में भी ये रहता है कि आपको प्रेफरेंस वाइज आपको स्पेशलाइजेशन देनी होती है। जैसे आप कोई डिपार्टमेंट, लाइक इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सो दे विल आस्क यू दैट विच स्पेशलाइजेशन यू वांट टू गो। सो लाइक मैंने जो था वो डिज़ाइन दिया था हर जगह पे, तो डिज़ाइन के बाद फिर आप सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हो, थर्मल जैसे मैंने दिया था, फिर थर्ड मेरा जो था वो मैन्युफैक्चरिंग था। तो ऐसे करके आप फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हो। बट इसमें स्टूडेंट्स लोग मतलब क्या गलती होती है कि उन लोग सब मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, सो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस थिंग कि वी नीड टू, बिकॉज फॉर एवरेज गेट स्कोर ऑल्सो we can create a lot of opportunities for ourselves, but for that we need to create the opportunities. So for that we need to apply for different in different IITs for different programs, and for each program you have to pay the fees. So वो दिमाग में आता है कि इतना मतलब फ़ी लगेगा हर एक एप्लीकेशन के लिए, एक प्रोग्राम के लिए। तो आप जैसे एक ही IIT में आप 5-6 एप्लीकेशंस डाल सकते हैं, अपन लोग फिल कर सकते हैं, तो उसमें हर एक एप्लीकेशन के लिए फ़ी लगेगी। तो ऐसे ही फिर मल्टीपल IITs में आप जब डालिएगा तो फिर फ़ी जो रहती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, 5K to 7K फ़ी चले जाती है। तो ये स्टूडेंट उस सब में मतलब सोचते हैं कि इतना पैसा लगाएंगे और वहाँ से कॉल भी नहीं आया तो मतलब क्या। तो बट आई थिंक कि इफ़ यू विल एबल टू कन्वर्ट वन कॉल इनटू एन ऑफर, देन एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। सो तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि अप्लाई तो करना चाहिए। आपका गेट स्कोर अगर डिसेंट मतलब एवरेज भी है या लो भी है, सो बट यू शुड अप्लाई। एंड वन अनदर ऑप्शन इज ऑल्सो देयर अपार्ट फ्रॉम MS, एंड दैट इज़ डायरेक्ट PhD। हाँ, तो डायरेक्ट PhD इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, एंड यू विल गेट डायरेक्ट PhD एट लो गेट स्कोर ऑल्सो। तो इसमें क्या होता है कि आपको MS प्लस PhD दोनों की डिग्री मिलती है। तो ये भी मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि स्टाइपेंड आपका 35K के अराउंड होता है मंथली। तो फिनेंशियली यू विल बी स्टेबल।
एंड जो रिसर्च वर्क होता है वो एक मतलब थोड़ा जो है उसका लेवल MS से ज़्यादा होता है। ये कितने ईयर का होता है डायरेक्ट PhD? डायरेक्ट PhD 5 इयर्स का कोर्स। 5 इयर्स का कोर्स है पूरा। अच्छा, ओके ओके ओके। एंड इसमें फ़ीस वगैरह क्या रहती है? फीस जो रहती है वो MS प्रोग्राम जो होता है उसी के ही मतलब इक्विवेलेंट ही फीस होती है। मतलब जो MS प्रोग्राम का ट्यूशन फ़ी होगा और जो MS प्रोग्राम का हॉस्टल और मेस फ़ी होता है, डाइनिंग चार्जेस होते हैं, तो वही चार्जेस आपको यहाँ पे भी देने होते हैं। बट यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि आपको मंथली काफ़ी मतलब अच्छा स्टाइपेंड मिलता है कंपेयर टू MS प्रोग्राम। तो यहाँ पे मतलब ये भी मतलब एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लो गेट स्कोर पे। लो गेट फिर भी कितना लो, मतलब इवन Even if you have qualified gate, so actually I can means I would suggest that if somebody has just qualified the gate, then he or she should apply for this direct PhD program, because it so happened that it all depends on your interview, how your interview goes. If your interview goes well, and if the faculty who is taking your interview, he or she will be pretty much impressed by you, then gate score doesn't matter. They will take you as their student. And so I think we need to create opportunities. Then only you will convert some opportunity into an offer. तो जैसे जो आपने PhD का बताया ये एकदम एज लो एज, तो इसमें आप बता सकते हैं क्या कि इसका इंटरव्यू का जो लेवल होता है वो थोड़ा अलग होता है, एंड इसका जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होता है? इसका कुछ आपको एक्चुअली क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेवल होता है वो तो सेम ही होता है। क्योंकि जो PhD का डायरेक्ट PhD का इंटरव्यूज़ होते हैं वो भी मतलब अंडर ग्रेजुएट ही होते हैं स्टूडेंट्स जो देते हैं इंटरव्यूज़। तो फैकल्टीज़ को पता होता है कि उनका जो लेवल है वो मतलब अंडर ग्रेजुएशन तक का ही लेवल है, तो उन लोगों को उसी हिसाब से ही मतलब क्वेश्चंस जो है किए जाते हैं फैकल्टीज़। सो MS और डायरेक्ट PhD के इंटरव्यूज़ में जो है वो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते। बट या इफ़ यू आर गिविंग इंटरव्यू फॉर PhD after doing masters from any NIT or from any of the college, then the interview level will be as per the standard of masters. But in the case of direct PhD, interview level will be undergraduate level only. अच्छा, तो प्रोजेक्ट का कुछ रोल रहता है BTech प्रोजेक्ट का? Sometime it may so happen that if your BTech project is very much relevant to the work which the faculty is doing, and that faculty who is interviewing you, then they will ask you the question, or that faculty will ask you the question from that domain, and what you did and how you did, like that. And then otherwise, if the faculty, if your project is not concerned with the domain which the faculty is working on, then that faculty will, I think, not going to ask you the project. अच्छा, तो इसमें प्लेसमेंट सिनारियो कैसा है डायरेक्ट PhD का? मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आफ्टर 5 इयर्स? तो आफ्टर 5 इयर्स यहाँ पे जो डायरेक्ट PhD का जो प्लेसमेंट सिनारियो है वो ऐसा है कि जो कंपनीज आती है वो PhD के लिए कुछ कंपनीज आती है जो R&D जो सेक्टर पे उनको ले जाना चाहती है स्टूडेंट्स को, तो वो मतलब PhD को रिक्रूट करती है। अदरवाइज़ PhD का कैंपस रिक्रूटमेंट थोड़ा लो होता है MS के कंपैरिजन में। बट डायरेक्ट PhD के और भी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे होते हैं कि आप पोस्ट डॉक के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको पोस्ट डॉक के लिए। और वहाँ से मतलब अपना कॉलेज जो है IITs जो रहती है वो कोलैबोरेशन पे काम करती है मतलब बाकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो उसमें क्या होता है कि आप मतलब आपका जो काम है, आपने जिस डोमेन पे मतलब काम किया है और पेपर पब्लिश किया है, और फॉरेन में अगर कोई प्रोफेसर उस पर मतलब काम कर रहा है, तो वो फिर आपको मतलब यहाँ से जो प्रोफेसर्स होते हैं आप जिसके अंडर पे काम कर रहे हो वो आपको रिफ़र कर देते हैं। तो फिर अगर उनको आपका काम अच्छा लगेगा तो आपको मतलब वो डायरेक्टली बुला देते हैं, एंड स्टाइपेंड विल बी ऑल्सो वेरी गुड। अच्छा, ओके, तो ऐसा रहता है।
तो मतलब इसमें हम R&D वगैरह में अगर हम जाना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो ये इससे भी आप जा सकते हैं, ये एक वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, आप जो MS प्रोग्राम कर रहे हैं फ्रॉम IIT मद्रास, है ना, तो ये जो है आप मशीन डिज़ाइन में कर रहे हैं, तो इसका क्या है प्लेसमेंट सिनारियो आगे का? मशीन डिज़ाइन का तो अच्छा ही रहता है, मतलब मैकेनिकल में जो है प्लेसमेंट जो है डिज़ाइन का ऑलमोस्ट सभी लोगों का हो जाता है। ऑलमोस्ट 100% है पूरा। तो मैं मतलब 2019 में ज्वाइन किया था। हाँ, और ये 3 इयर्स प्रोग्राम है। जी, ये एक्चुअली ये 2.5 ईयर्स से ही प्रोग्राम होता है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब जो मतलब गाइडलाइंस हमको मिली थी उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो है 2.5 ईयर्स ही प्रोग्राम है। जी, और एक्सटेंड इट डिपेंड्स ऑन लाइक ऑन योर गाइड, and if your work will not be completed in within 2.5 years, then it may be extended to 3 years. And placement is very good, even though if you get into an IIT with any interdisciplinary branch also, then also there will be a high chance that you will get placed from campus. You will get the placement. जैसे कोई ब्रांचेस का नाम बता सकते हैं आप? हाँ, जैसे मैं बाकी IITs का उतना तो नहीं जानता, लेकिन IIT मद्रास के बारे में मैं जो बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ही अंदर में 2 डिपार्टमेंट्स आते हैं। एक है आपका इंजीनियरिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट और सेकंड वन इज़ अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट। सो इसमें भी जो प्लेसमेंट्स है वो मतलब बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसमें भी मतलब अपने आप को मतलब एनरोल करा लेते हैं, सो देन ऑल्सो यू विल गेट गुड प्लेसमेंट फ्रॉम दिस ब्रांच। इवन दो इफ़ यू गेट ओशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हाँ, then also there will be a high chance that you will get placed, because so many companies used to come in IIT Madras, and as also I am working as a placement coordinator there. So I can tell you that even though if you are not able to get a job in core sector, then so many non-core companies do come in IIT Madras, so you can get yourself placed in these companies, non-core companies. So students, they do these things. So if you it's like in for ocean engineering, I can say that ONGC comes every year. Every year ONGC comes to recruit students, and even the PG students from ocean engineering department. So but the number of offers ONGC give every year is 1 or 2 like that. Less. I'm not sure about the number, but it is less. But even though if you are in the top for in your PG, your CGPA is very good, then there will be high probability that you will get this. Right. ओके, सो ये सारा प्लेसमेंट सिनारियो का था। तो अपार्ट फ्रॉम दिस IIT मद्रास का आपने एक ओशन इंजीनियरिंग बताया, और भी कोई अलग से ब्रांचेस है जिसमें स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं, जिसका अगर 40 मार्क्स है, 45 मार्क्स है, मतलब उनको क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो आप बता सकते, किसी की हेल्प हो जाएगी ये। हाँ, तो IIT मद्रास में तो मैंने जैसे बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही जो 2 डिपार्टमेंट्स आते हैं, एक तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो गया और एक सेकंड वन इज़ applied mechanics department. So apart from it, aerospace department is also there. So students can apply in this department as well. And ocean engineering department is also there. एरोस्पेस का प्लेसमेंट कैसा है वहाँ पे? Aerospace engineering, like core, if I'll talk about the core placement, core companies. So core companies placement scenario for aerospace engineering is not that good as mechanical engineering department. But like I said that you can get placed yourself in non-core companies as well. You can target, because so many companies comes every year. So you can target non-core companies and you can prepare accordingly. ओके, तो जैसे
नॉन कोर कंपनीज़ में जैसे कैसे आईटी सेक्टर एंड ये सारे हो गए, मतलब किस तरीके के कंपनीज़ होते हैं नॉन कोर कंपनीज़ में? नॉन कोर कंपनीज बेसिकली मतलब सब डिफरेंट डोमेन्स की रहती है, जैसे एनालिस्ट की जॉब रहती है। अच्छा, बिजनेस एनालिस्ट हो ये गए। तो अभी बहुत बूम में चल रहा जी, है, बिजनेस एनालिस्ट। जी, डेटा एनालिस्ट हो गई। फिर आपका कंसल्टिंग भी आती है। अच्छा, हाँ, कंसल्टिंग भी आती है। फिर कुछ मैनेजर्स की पोस्ट के लिए भी आते हैं। ओके। तो जैसे एक स्टूडेंट अगर मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाइड मैकेनिक्स जी, और मशीन डिज़ाइन यस। एंड एक और आपने कौन सा ब्रांच बताया? No, mechanical engineering department is itself a department, and under this department there is two departments: engineering design department, अच्छा, engineering design. This is a different department apart from this design, machine design. अच्छा, अच्छा। Machine design, thermal and manufacturing. हाँ, These three specialization come under mechanical engineering department, but these are the separate department: engineering design department and applied mechanics department. ओके। तो मतलब एक स्टूडेंट जो है उसका अगर 40, 50, 60 मार्क्स आया सो ही कैन अप्लाई इन दिस ब्रांच है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी रहती है। और क्योंकि आपको इसी से मतलब क्या है कि कॉल तो आते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट अ कॉल, एंड वंस यू गेट्स अ कॉल फ्रॉम IIT, you prepare yourself according like for the interview, and if you will give multiple interviews, say if you have given 5 interviews, so from that 5 interviews if you will able to convert one interview into an offer, then everything will be worth it, right? So I think my suggestion would be to apply in different IITs for different programs ओके। and for different specialization as well. So you need to spend a little bit more amount of money in this, but the final result will be worth remembering, right? तो जैसे और भी कोई IIT है जिसमें अपार्ट फ्रॉम IIT मद्रास और ऐसे कोई ब्रांचेस हैं जिसमें अप्लाई किया जा सकता है लो स्कोर में, एंड थोड़े से प्लेसमेंट सिनारियो आपको अगर कुछ आइडिया होगा तो उस पर? मतलब IIT मतलब ज़्यादा IITs का तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट जैसे IIT बॉम्बे है और IIT दिल्ली है, तो IIT दिल्ली में भी आपका ये अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट है IIT दिल्ली में, तो जहाँ से मेरे को भी कॉल आया था IIT दिल्ली से। और IIT बॉम्बे में भी मतलब ये एक सितारा हो गया, और भी मतलब इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब स्टूडेंट्स को मतलब रेगुलरली विजिट करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो MS का जो प्रोग्राम होता है, इसके लिए मतलब वो वैकेंसीज निकलती है, जब एप्लीकेशन निकलता है IITs में, तो देन ओनली यू कैन अप्लाई, बिकॉज इट इज़ द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग इन फॉर दिस MS प्रोग्राम इज़ वेरी डिफरेंट एज वी अप्लाई फॉर MTech प्रोग्राम थ्रू COPE. So we need to regularly visit the website after getting the results of GATE. Once the GATE result will be declared, then you need to visit the website of IITs regularly, and whenever you will see that okay they have released the application for MS program, you have to apply, and you will come to know that from which, like you are from mechanical engineering department suppose, then where for what interdisciplinary department you are eligible for, Okay. you will come to know. So once you will come to know that okay I am eligible for these departments, then you can I think you should apply maximum out of it, so that it will create more number of opportunities for you. मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है, जितना आप अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा। एक क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट को पता कैसे चले कि इस ब्रांच का इसका प्लेसमेंट सिनारियो अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है? क्या आपने अप्लाई करने से पहले ऐसा कुछ बैकग्राउंड वर्क किया था? अगर किया था तो किस तरीके से किया था, कैसे किया था, थोड़ा बताएंगे तो अच्छा होगा। जैसे मतलब मैं तो मतलब पहली बात तो ये सोचता मतलब बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि प्लेसमेंट इसके बाद क्या, मतलब इफ़ वी विल डू दिस प्रोग्राम सपोज इन एनी इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट फ्रॉम सम IIT, सो उसके बाद व्हाट वी विल डू। तो ये चीज़ तो हटा देना चाहिए दिमाग से, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू डू दैट प्रोग्राम इन IIT, so it itself a very big achievement for you, and after that once you will get into an IIT, you will
create ample of opportunities for you. So but what this was there in my mind also when I was applying for for various programs, in different IITs. So even I also not applied for in so much for so much programs for so much departments in IITs. Even I also spend a little bit amount of money. So but I came to know after that only that you need to apply, then only you will get a call. If you will not apply, you will not get a call. So it will be a lack of opportunity for you. And what I get means after getting getting into an IIT Madras, I came to know that every department is good. Their research work, their what means faculties in that department, they are doing marvelous job. They are contributing something to the nation. So you will also get a chance to do this thing. And so many projects are going on in IITs. Projects of some national level projects of DRDO, means organization like this, DRDO, BARC, ISRO. So very good projects are going on, so you can be a part of that project. Because if some faculty is handling that project, and if you get yourself work under that faculty, then you will be also part of that project. So again, this will also add a star to your name. So likewise you will create a opportunity, keep on creating opportunities. So I think you should not worry that what I will do next, because you have get yourself into an IIT, you will boom yourself accordingly. ये बहुत अच्छा बात बताया आपने. अच्छा, थोड़ा सा मैं इस पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था. क्योंकि देखिए एक स्कोर जब आता है ना, हमारा मतलब कोई भी एक स्टूडेंट प्रिपेयर करता है वो यही सोचता है कि मैं PSU जाऊँगा, है ना, सबका यही रहता है PSU जाऊँगा. अब PSU नहीं जाता तो दिल टूट जाता है. फिर उसके बाद उसको किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए IITs इंटरव्यू के लिए. क्योंकि IITs के इंटरव्यू के आपने जो बताया, आपने जिस तरीके से इतना सुंदर से आंसर किया, वो शाफ्ट वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपने उसके पहले कुछ प्रिपरेशन किया था कि गेट की प्रिपरेशन से काफ़ी था वो? नहीं, मैंने ऐसा जैसे एक्सप्लिसिटली कोई प्रिपरेशन नहीं की थी. कि मतलब अलग से मतलब कुछ इंटरव्यू के लिए अलग से कुछ पढ़ रहा हूँ, ऐसा मैंने नहीं किया था. बिकॉज ऐसा था कि इंटरव्यूज़ में आपको गेट में अपन लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और फार्मूलाज रिवाइज करते हैं. बट फॉर अ प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू यू नीड टू गो थ्रू योर नोट्स ओनली several times instead of practicing questions, because you will not going to solve a question there. So बेसिक्स ही मतलब जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उन्हीं को मतलब आपको बार बार रिवाइज करना होता है. तो नंबर ऑफ रिविजन्स जो है आपको बढ़ा देने होते हैं उसके दौरान. तो बट ये रहता है कि आप पहले तो स्पेशलाइजेशन आपको चूज़ करना होता है. सारी स्पेशलाइजेशन अच्छी होती है. जैसे कई लोग सोचते हैं कि यार मैन्युफैक्चरिंग में प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब बहुत कम डालते हैं स्टूडेंट जो है. पहला जो उनका प्रायोरिटी रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, वो डिज़ाइन ही होता है हर IITs में. और सेकंड जो होता है वो थर्मल होता है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थर्ड प्रेफरेंस देते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट ईयर मतलब उनका जो ग्रेजुएशन लेवल होता है उसमें बहुत अच्छा उन्होंने काम किया होता है रोबोटिक्स में या कुछ मतलब स्पेशलाइजेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग. तो वो स्टूडेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को या थर्मल को प्रेफरेंस देते हैं. तो आप जिसको भी प्रेफरेंस दो, अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू. लाइक मैंने जैसे डिज़ाइन को प्रेफरेंस दिया था, पहला प्रेफरेंस जो मेरा था वो डिज़ाइन था. तो मैंने डिज़ाइन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स थे वो ही मतलब पढ़े थे गेट के, और दैट टू फॉर द गेट सिलेबस ओनली आई कवर्ड. सो आई रिवाइज द टॉम, theory of machine, strength of material, machine design and engineering mechanics. These 4 subjects I prepared for design. So जो मेरे नोट्स मेरे बने हुए थे पहले से, उसी को बस मैं रिवाइज करता था. और अपार्ट फ्रॉम इट आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड मैथ्स पोर्शन, मैथमेटिक्स पोर्शन लिटिल बिट.
सो मैथमेटिक्स से मैंने कुछ मतलब पहले बहुत सारे जो मेरे सीनियर्स थे उन लोग ने इंटरव्यूज़ दिलाए थे, तो उन्होंने उनसे मेरी बात हुई थी कि कैसे क्वेश्चंस उन लोग पूछते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन से। तो वहाँ से मतलब बहुत सारा सर्वे किया था, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुँचा था। तो फिर मैंने मैथ्स से जो है वो कुछ ही टॉपिक्स को रिवाइज़ किया था, जैसे कि कैलकुलस पार्ट मैंने रिवाइज़ किया था और प्रोबेबिलिटी का पार्ट मैंने रिवाइज़ किया था, और जो थर्ड था वो फंक्शंस एंड लिमिट्स थे, अच्छा। और अलॉन्ग विद देयर ग्राफ्स। ओके। हाँ, तो ग्राफ्स वगैरह मैंने देख के गए थे, क्योंकि लाइक व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू इन IIT गांधीनगर, because every IITs, when you will be called for MS program, you will be you will have to give a written test, and after qualifying that it will be followed by an interview. So I means almost whatever IITs I got a call, I cracked that it is written test, and I gave the interview. So at IIT Gandhinagar also, when I gave this interview for mechanical engineering department, this design specialization, so they asked me one curve. And even in IIT Madras, when I was giving applied mechanics department's interview, the panel they asked me one curve to draw. So that curve was, I think, log x in applied mechanics department. And in IIT Gandhinagar, they asked me some trivial curve, I think sine mod of x plus 1, like that. No, sorry, e to the power x sine x, like that. So that is basically that curves is which we can correlate with it, that to damped vibration. So from there they asked this curve from the vibration part. So general basic curves they ask. They will not going to give you very trivial curve. अच्छा, तो जो रिटन टेस्ट रहता है, रिटन टेस्ट का मतलब क्या टफ रहता है कि इजी रहता है, कि मतलब गेट जितना टफ रहता है कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिटन होता है? रिटन टेस्ट में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। अच्छा। मतलब आप थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपेयर करे हो, मतलब थोड़ा सा भी आपको मतलब नहीं भी प्रिपेयर करके गए हो ना, तो आप रिटन तो निकाल सकते हो वहाँ पे। कुछ डिपार्टमेंट का टफ भी होता है रिटन, जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में सॉलिड मैकेनिक्स का, क्योंकि मैंने डिज़ाइन ही प्रिपेयर किया था तो मेरा डिज़ाइन पार्ट अच्छा था, तो सॉलिड मैकेनिक्स का इंटरव्यू मेरा मतलब रिटन जो है वो मेरा निकल गया था, क्वालिफाई हो गया था। बट जो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए एक और मतलब उसमें स्पेशलाइजेशन होता है। अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 3 स्पेशलाइजेशन होते हैं, एक सॉलिड मैकेनिक्स और एक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, और थर्ड वन जो होता है वो बायोमेडिकल होता है। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए जो पेपर था वो बहुत टफ था, तो वो मेरा मतलब नहीं निकला था, रिटन वो क्वालिफाई में नहीं किया था कुछ। लेकिन बाकी बेसिक ही जैसे IIT गांधीनगर में जो था पेपर वो बहुत इजी था, तो उसमें जनरली क्वेश्चंस आपको गेट लेवल के आएंगे, गेट लेवल से भी नीचे आते हैं, मतलब आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा भी, अगर आपको मतलब बेसिक आपके क्लियर है तो। और रिगार्डिंग मतलब ऑलमोस्ट तो हमने सारी चीज़ें, मतलब सब चीज़ को कॉम्प्रीहेंसिव वे में कवर कर ही लिया है। बस एक आखिरी क्वेश्चन पूछना था, प्लेसमेंट जो होता है उसमें मतलब पैकेज क्या होता है उसमें, मतलब कि किस तरीके से कहाँ तक वेरी करता है, किस तरीके का रहता है, ये भी एक स्टूडेंट्स पूछ। ये भी रहता है, मेरे दिमाग में भी था कि मतलब बहुत हाई पैकेजेस भी जाते हैं IITs में, तो जाते हैं और गलत नहीं है, जाते हैं, हाई पैकेजेस भी जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं मतलब उसी से ही बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं उसी के बारे में ही बता पाऊँगा, और उसी का ही मतलब मैं यहाँ पे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी हूँ अपने IIT मद्रास में। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग, अगर सम स्टूडेंट दे वांट टू वर्क विद कोर कंपनीज, तो उन लोग जो है कोर कंपनीज को टारगेट करते हैं। तो अब कोर कंपनीज़ में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी आती है, अच्छी कंपनी, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक हो गई, और जैसे बजाज हो गई, कैटरपिलर, लैम रिसर्च, MRF, अपोलो टायर्स, so many big companies, core companies, they come for the recruitment. बट ऐसा होता है कि जो कोर कंपनीज़ के पैकेजेस होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन कोर कंपनीज। जी,
तो अब इनके जो पैकेजेस होते हैं वो वैरी करते हैं। एवरेज पैकेज अगर आप लीजिएगा तो 10 to 12 जो है एवरेज रहता है कोर का। जी। 9 से 7 से 15 तक वेरी करते हैं। तो एवरेज आप देखिएगा तो 12, 11, 10 ऐसे मतलब पैकेजेस आते हैं। और बाकी अगर आप नॉन कोर कंपनीज़ को टारगेट करते हो तो बहुत सारी नॉन कोर कंपनीज जो है वो 20+ पैकेज देती है। अच्छा। जी। अमेजन आती है, JP मॉर्गन आती है। ओके। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी जो नॉन कोर कंपनीज़ है बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए, मार्केटिंग मैनेजर, सो डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए आती है। तो वो जो है वो बिग पैकेजेस देती है। बट वो फिर रिक्वायरमेंट भी उनकी वैसे ही रहती है। जैसे कुछ कंपनीज अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर की आई, सो दे विल आस्क यू टू, दे विल टेक अ कोडिंग टेस्ट। ओके, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप एनालिस्ट के लिए जा रहे हो तो उसका जो बैकग्राउंड है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उनको इससे मतलब नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है। एग्जैक्टली। करिकुलम में। हाँ, सो इफ बिकॉज दे विल डू द primary shortlisting on the basis of resume which you will give. So in that resume you need to mention everything, what like how you are compatible with that profile. You need to show that. So on the basis of that they will shortlist you in for a test, and then after giving that test, after cracking that test, it will be followed by an interview. मतलब ऐसा है कि जो पुराने जितने भी जो भी है स्टूडेंट्स, सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है सारे उसमें प्लेसमेंट में बैठने का। मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वो आप उसको कैसे ग्रैब करते हो वो आपकी। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट इज़ लाइक अगर कोई स्टूडेंट पहले मतलब जैसे अपन लोग सोचते हैं कि यार ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, यहाँ पे कोर कंपनीज जो है उसमें मुश्किल है प्लेसमेंट, क्योंकि कोर कंपनीज कुछ जो रहती है वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के लिए ओपन नहीं होती है। तो फिर आप पहले से ही यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ दैट ओके दीज मैनी कंपनीज दे ओपन फॉर ऑल, बिकॉज जो नॉन कोर कंपनीज होती है दे विल नॉट स्पेसिफिकली टारगेट एनी प्रोग्राम, they will open for all, so the competition will be high. So that is why you need to prepare yourself very initially, like from the initial stage you need to do the preparation so that you will able to crack whatever the test they will conduct, and you will because so many things you need to do, like online courses you need to do for non-core companies, like courses related to data science or courses related to SQL, like whatever the demand of the company. So for that you need to do the initial survey kind of thing, and once you will able to understand that okay this company want these things for this profile, then you can prepare yourself accordingly. You can start apart from your curriculum, you can give extra time for these things. You can study these things and you can learn these things, because now on online platform everything is available. तो जी, तो इसमें आप आराम से मतलब सब चीज़ जो है आप पढ़ सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ गिविंग यू द सर्टिफिकेट दैट यू हैव डन दिस कोर्स एंड दिस इज़ द सर्टिफिकेट, and in NPTEL lectures also you can do. So many things are there, and once you will go there in an IIT, then you will meet so many people, so many students. So जो है आप अपने आप ही मतलब वो ऐसा एक सराउंडिंग, एक ऑरा क्रिएट होता है जो मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है. तो ऑब्वियसली यू विल एक्सेल इन दैट ऑरा, यू विल प्रोपेल ओनली, यू विल नॉट गोइंग टू डी एक्सेलरेट. ये बहुत बड़ी बात बताया आपने. तो जैसे अगर मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक जो करिकुलर जो होता है उसका जो सिलेबस होता है, आप लोग मतलब किस तरीके का पढ़ाई करते, क्या पढ़ाई करते इन IIT मद्रास. मतलब एक स्टूडेंट अगर जा रहा है तो वो उसको क्या क्या मतलब क्या क्या पढ़ने मिलेगा. और जैसे आपने लिया है मशीन डिज़ाइन, तो आप मशीन डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, तो उसके अलावा और जैसे कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, क्या हम वो चूज़ करने का ऑप्शन रहता है. मतलब जस्ट थोड़ा सा करिकुलम के बारे में बताइए, आपका कैसा है. तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम है, मेरा जो प्रोग्राम है MS का, तो इसमें आपको टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ही करने होते हैं थ्रू आउट द टेन्योर.
और अपार्ट फ्रॉम दैट दिस 5 सब्जेक्ट्स यू नीड टू डू दी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट. तो अब जो ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं इट डिपेंड्स ऑन दी गाइड, द प्रोफेसर which is been allotted to you. Okay. So that professor will tell you that which subjects you need to take, which subjects you need to do. So that those subjects will going to help you in your research work. So that is why these subjects this decision for these subjects is been taken by your guide. But apart from this, like if you want to do some other subjects, like say if you want to do machine learning course in CS department, if you want to learn data science from machine learning from this CS department, then also you are free to do that. But you need to convince your guide for that. If your professor will be ready that okay, your work is going decent, you can do with that course, no issue, then you can do that courses, no issue. बिकॉज नॉन कोर कंपनीज़ में अगर हम टारगेट कर रहे हैं उसमें भी फॉर द सेफर साइड, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम माई मशीन डिज़ाइन में कुछ और भी पढ़ना चाहूँगा, बिल्कुल अपने आप को सेफ देखने के लिए. नहीं, ये बहुत अच्छा है. तो लोग बोलते हैं कि IIT मतलब M.Tech करने के बाद प्लेसमेंट नहीं होता, इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच के बाद प्लेसमेंट नहीं होता, लोगों को सही गाइडेंस नहीं रहता मेरे ख्याल से. हाँ, मतलब प्लेसमेंट्स तो वही बताया ना कि अपने ऊपर ही होता है. अगर आप मतलब अपने आप को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका प्लेसमेंट होगा, पूरा अपॉर्चुनिटी रहेगा. क्योंकि मैं अभी का एक एग्जांपल बता सकता हूँ. हाँ, बिल्कुल. जो मतलब मैं प्लेसमेंट एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ कंपनीज़ हैंडल की है जिसका मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहा हूँ. तो मेरी जैसे अभी कुछ कंपनीज़ है, जैसे एक लिनॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी, चेन्नई बेस्ड कंपनी है. GE जो है कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक, ये कंपनी के लिए मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था. तो ऐसे करके मल्टीपल कंपनीज मैंने हैंडल की है. तो इसमें मैं एक स्टूडेंट से मिला जिनका जो गेट स्कोर था वो उतना अच्छा नहीं था. और वो बायोमेडिकल में एडमिशन लिए. जो बायोमेडिकल ब्रांच है इसमें अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट के अंडर पे आती है ये ब्रांच. और उसमें जो है उनका बायोमेडिकल में हो गया था M.Tech प्रोग्राम में थ्रू कोप. तो बायोमेडिकल आपको इजीली मिल जाता है क्योंकि मतलब स्टूडेंट जाते प्रेफर नहीं करते उसको. तो बायोमेडिकल अगर आप कम गेट स्कोर भी है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट करते हैं. तो अब उनको पता था कि मेरे को यहाँ पे मिल गया है, और यहाँ से बायोमेडिकल का जो प्लेसमेंट है कोर कंपनीज़ में वो नहीं है, क्योंकि बायोमेडिकल के लिए कोई कंपनीज़ नहीं खुलती है. तो आपको ऐसी कंपनीज टारगेट करना होगा जो मतलब नॉन कोर हो, या फिर जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेवेंट हो थोड़ी बहुत. तो फिर उन्होंने वैसा प्रिपरेशन किया, अपने आप को प्रिपेयर किया. उन्होंने M.Tech का जो सिलेबस था, मतलब M.Tech के जो कोर्सेज थे वो तो किए ही. अपार्ट फ्रॉम दोज कोर्सेज वो उन्होंने जो है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के कोर्स भी किए, और उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट भी किया. तो उसके बेसिस पे जो है उनका बहुत बड़ी कंपनी ऑन सेमीकंडक्टर, उसमें उनका प्लेसमेंट हो गया. और पैकेज भी लाइक आई रिमेंबर लाइक 20 के आसपास था. 20 LPA. जी. तो बायोमेडिकल के स्टूडेंट जो है वो मतलब अच्छा, इतना अच्छा पैकेज ले गए. तो दैट इज़ द थिंग, लाइक एवरीवेयर अपॉर्चुनिटीज़ विल बी देयर, बट फॉर दैट द कैच इज़ you need to create opportunities for yourself. Everywhere the opportunities will be there, but if you will not do anything, just getting into an IIT will not work out. You have to make a better version of you with every day, every passing day. Then only you will do something good at the end. यस एग्जैक्टली. तो ये IIT मद्रास के ही थे वो जो बायोमेडिकल. एग्जैक्टली, यस. अच्छा, ओके. दैट्स बहुत बढ़िया था ये तो. ठीक है, चलो बहुत कुछ आपसे जानने को मिला. आई होप हमारे लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होगा ये चीज़ों से. आप अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़. मैं मतलब यही बोलना चाहूँगा कि जो भी मतलब स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं गेट की, तो वो पहली बात तो ये ना सोचे कि यार PSU ही जाना है, या किसी चीज़ को टारगेट ना करे.
अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना पूरा एनर्जी लगा के सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए. लेट द रिज़ल्ट व्हाट द रिज़ल्ट विल बी. अब उसके बाद ये मत सोचिए कि अरे यार मेरा इतना स्कोर आ गया, क्योंकि सब लोग तो टॉप नहीं कर देंगे. कुछ लोग जो रहेंगे वो टॉपर्स बनेंगे, कुछ लोग एवरेज आएंगे, कुछ लोग बिलो एवरेज भी आएंगे, लेकिन कुछ लोग जो है सिर्फ क्वालिफाई ही करते हैं. तो कहने का मतलब है कि आपको उसी चीज़ में जो अब आपका एक बार रिज़ल्ट आ गया गेट का, तो वो ही मतलब आपका जो है वो ट्रूथ है, उसके अलावा कुछ नहीं है. तो नाउ यू नीड टू लाइक, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस साल जो आपने प्रिपरेशन की उसमें कहीं पे कुछ लैक हुआ, अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाए, सेल्फ स्टडी आप अच्छे से नहीं कर पाए, या फिर अगर आपकी प्रैक्टिस में कमी हो गई, तो या कहीं पे अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक्स में अगर आपका जो बेस है वो वीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक और अटैम्प्ट देना चाहिए, तो यू मस्ट गो फॉर दैट अटैम्प्ट. वो कॉल जो है वो आपकी ही होनी चाहिए, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप मत करिए. आपकी कॉल होनी चाहिए कि हाँ मुझे जैसे देना है. जैसे मैंने मतलब जो है थर्ड अटैम्प्ट जो मैंने दिया था वो मेरी खुद की कॉल थी, क्योंकि सेकंड टाइम मैंने जो प्रिपरेशन की थी उसमें मतलब कोचिंग मैंने ली थी, तो कोचिंग से जो नंबर ऑफ़ आवर्स जो मैंने डिवोट किए थे वो लेक्चर्स में ही चले गए, तो सेल्फ स्टडी पे टाइम उतना नहीं दे पाया मैं. तो इसलिए मतलब वो मेरे को अंदर से आया कि नहीं, मैं एक और मतलब ट्राई देना चाहता हूँ. और उसके बाद जो वो फाइनल ट्राई था मेरा, उसमें फाइनल ट्राई में मतलब जो भी मतलब स्कोर आया उसके बेसिस पे मैंने हर जगह पे जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मैं मतलब देख पा रहा था वो मैंने मतलब अप्लाई कर दिया, और उसमें मैंने मतलब जो है अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट किया ऑफ़र में. तो वैसे ही आप भी मतलब जो भी मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब मैंने अपना सारा चीज़ एनर्जी लगा दिया है उस गेट में, उस प्रिपरेशन के दौरान, so then you should look for opportunities, because there will be so many opportunities with low gate score as well. So for that, but the thing is only you need to give number of hours in searching of that opportunities. और उसके बाद आपको जो सेकंड काम है वो अप्लाई कर देना है. इस समय में आपको ये नहीं देखना है कि कितना फ़ी लग रहा है एप्लीकेशन में, क्योंकि जो फ़ी होता है वो बाद में एक बार अगर आप कोई भी एक ऑफ़र को कन्वर्ट कर लेते हो, मतलब कोई भी एक अपॉर्चुनिटी को ऑफ़र में कन्वर्ट कर लेते हो, तो वो जो भी मतलब फ़ी होता है वो वर्थ इट हो जाता है. वो आपका मतलब वो पूरा जो है रियम्बर्स हो जाता है एक तरह से. तो उसमें फिर और वो एक आपको जो एक फ़ीलिंग भी होगी जब आप एक आईआईटी में एडमिशन लेते हो, तो वो फीलिंग भी वो एक अलग ही फीलिंग होती है. तो मैं वही कहना चाहूँगा कि बट अपने आप में बिलीव रखना है हमेशा. यू नीड टू बिलीव योर सेल्फ एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू मूव अहेड एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ वंस यू गेट अ गेट स्कोर. ओके, तो मतलब फुल एंड फाइनल यही है, जो भी गेट स्कोर आया है उसको ट्रुथ करके एक्सेप्ट करिए, और जितने भी टॉप आईआईटीज़ हैं, जो टॉप 7 जो बोला जाता है, वो आईआईटीज़ में अप्लाई करिए, है ना, जितने भी ब्रांचेस हैं, एंड मेहनत करते रहिए. दैट्स इट. ओके, चलो, थैंक यू.